Morning students, today we are going to discuss the next topic, that is flux. So yesterday we have discussed, in last topic we have discussed calcination and roasting. So what is calcination? Heating of the ore in the absence of air, in the absence of oxygen. While what was roasting? Roasting was the heating of the ore in the presence of air or in the presence of oxygen. See, yesterday I have told you calcination will take place in case of carbonated ore. Those ores which contain which are present in the form of a carbonated form, they will undergo calcination, while the sulfide ores will preferentially undergo roasting. So if some non-fusible impurities are still remaining in the ore, then we will add flux to the ore. So first of all, understand what is flux. Flux is, if calcinated or roasted ore still contain non-fusible impurities, then a flux is added, then a new substance is added, then a substance is added during the reduction of the ore, and this substance is known as flux. So flux will combine with the non-fusible impurities and it will form slag. Flux क्या करेगा? It will combine with the non-fusible impurities. जो impurities हैं, जो non-fusible impurities हैं, उनके साथ ये combine करेगा और क्या form करेगा? Slag. Slag is fusible mixture. ये slag किस तरह का mixture होगा? It will be a fusible mixture. So here I am taking impurities. Impurities में यहाँ पे consider करो. Suppose SiO2 is acting as a non-fusible impurity. Non-fusible impurity प्लस, अब इसमें मैं फ्लक्स ऐड कर रहा हूं जैसे कैल्शियम ऑक्साइड. क्या ऐड किया यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड. हियर कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज फ्लक्स, सो इट विल कन्वर्ट इट इनटू अ फ्यूजिबल मिक्सचर दैट इज नोन एज स्लैग. ठीक है, एंड स्लैग का जो फॉर्मूला होगा इसके केस में, दैट इज CaSiO3. इट इज स्लैग. So if we see the type of impurities, our ore is containing, our calcinated or roasted ore is containing which type of impurities? Acidic impurities. किस तरह की impurities है? Acidic impurities. Acidic impurities में किस तरह का flux ऐड किया हमने? Basic flux ऐड किया. क्या फॉर्म हो रहा है? Slag फॉर्म हो रहा है and it will form a fusible mixture. Similarly, if we have SiO2 acidic impurities, इसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करके, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं, सेम फ्लक्स सेम स्लैग फॉर्म होगा इसके केस में, CaSiO3 along with लिबरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो क्या हो जाएगी? यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी. ठीक है. और है अगर आपके पास SiO2 ही है, इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट भी ऐड किया जा सकता है. इफ आई एम एडिंग मैग्नीशियम कार्बोनेट, देन इट विल फॉर्म मैग्नीशियम सिलिकेट MgSiO3. इट विल बी slag, इट विल नोन एज slag along with liberation of कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, साथ में क्या लिबरेट होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिबरेट होगी. ये तो था केस जब हमारे पास इंप्योरिटीज किस तरह की हैं? एसिडिक इंप्योरिटीज हैं. बट अगर हमारे पास बेसिक इंप्योरिटीज हो, तो बेसिक इंप्योरिटीज के केस में जो फ्लक्स ऐड करेंगे, दैट विल बी एसिडिक फ्लक्स. सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी if the impurities are basic in nature, metal oxide है, we have studied metal oxides are basic in nature. So here FeO ये क्या एक्ट कर रहा है? as impurity. ठीक है, these are impurities. और ये किस तरह की impurities हैं? बेसिक impurities हैं. तो बेसिक impurities में हमने जो फ्लक्स ऐड किया, SiO2 will act as flux. और ये किस तरह का फ्लक्स होगा? It will be which type of flux? Acidic flux. ठीक, किस तरह का फ्लक्स होगा ये? Acidic flux. So SiO2 will act as acidic flux, और ये बेसिक impurities के साथ फॉर्म करके क्या फॉर्म कर रहा है? बेसिक impurities के साथ कंबाइन करके क्या फॉर्म कर रहा है? स्लैग फॉर्म कर रहा है. FeSiO3 फेरोसिलिकेट इसके केस में फॉर्म हो रहा है. कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो बेसिक impurity, और इसमें SiO2 जैसे ऐड किया, SiO2 will act as acidic flux. किस तरह का फ्लक्स हो गया? एसिडिक फ्लक्स होगा. किसमें चेंज हो गया? कैल्शियम सिलिकेट में चेंज हो गया.
और कैल्शियम सिलिकेट इज अ फ्यूजिबल मिक्सचर नोन एज व्हाट, स्लैग। ठीक है, तो फ्लक्स का मेन रूल क्या है? फ्लक्स जो है, जो नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज है, उनके साथ कंबाइन करके ये क्या फॉर्म करेगा? फ्यूजिबल मिक्सचर फॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है इसी में थर्ड स्टेप में बी पार्ट है, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, पहले हमने क्या किया? मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट किया कैल्सिनेशन से या फिर रोस्टिंग से। अगर कोई अनवांटेड इंप्योरिटीज प्रेजेंट है तो फ्लक्स ऐड किया। उसके बाद क्या करना है? रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। ठीक है, सो हियर वी विल यूज pyrometallurgy, the technique, the process which is used, that is pyrometallurgy. And what is pyrometallurgy? The process of heating of the metal oxide. The process of heating of the metal oxide with a suitable reducing agent. With a suitable reducing agent, and this process is known as pyrometallurgy or thermal reduction. इस process को क्या बोलते हैं? pyrometallurgy या फिर thermal reduction भी बोलते हैं। ठीक है, so here the metal oxide will undergo reduction in the presence of a suitable reducing agent. So next is smelting of the ore. The process of reduction of the metal in the presence of a carbon by using carbon, the process is known as a smelting. So here you can see any oxide of the metal is treated with carbon and it is forming metal along with the formation of a carbon monoxide. Here I have taken example of Fe2O3. कार्बन के साथ इसको ट्रीट किया, it will form 2Fe plus 3CO। ठीक है, अब कार्बन तो एक्ट कर रहा है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिमूव कर रहा है क्या? ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट विल हेल्प इन द रिडक्शन एंड इट विल अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन। तो कार्बन में किसका एडिशन हुआ? ऑक्सीजन का एडिशन हुआ। प्रोसेस क्या होगी? यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, एंड द रिड्यूसिंग एजेंट इज अंडरगोइंग सेल्फ ऑक्सीडेशन। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, स्टिल इट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। इट हैज द एबिलिटी टू गेन the oxygen, or it has the ability to remove oxygen from here. It will form 2Fe plus there will be formation of and you can balance the carbon। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 3CO के साथ फिर से ट्रीट किया, it will form 3 molecules of कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट किया, it will form जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर से जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट किया तो क्या फॉर्म कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देगा। लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इट विल फॉर्म लेड along with formation of a carbon monoxide. Whether it is carbon monoxide or carbon dioxide, they will escape from the furnace as these are present in gaseous state। ठीक है, दोनों के दोनों जो है वो क्या होंगे? gaseous state में प्रेजेंट होंगे। whether it is carbon monoxide और carbon dioxide, तो ये क्या करेंगे? escape कर जाएंगे। ठीक है, so ये तो है स्मेल्टिंग ऑफ ओर। द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस या फिर फर्नेस में ये रिएक्शन जो वो होंगे स्मेल्टिंग के, जिसमें हम कार्बन को यूज कर रहे हैं एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज रिडक्शन बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो भी यूज किया जा सकता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे टंगस्टन ऑक्साइड है, इसको मैंने हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, टंगस्टन, और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? वाटर फॉर्म हो रहा है। निकल ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, सिंपल रिएक्शन है, निकल अलग हो गया, वाटर जो वो फॉर्म हो रहा है। मोलिब्डेनम ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया, मोलिब्डेनम फॉर्म हो गया और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? 3 वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो यूज किया जा सकता है दैट इज रिडक्शन बाय यूजिंग एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के साथ साथ और जो मेटल्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे एल्कली मेटल्स का भी हमने पढ़ रखा है, एल्कली मेटल्स कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सो वो भी यूज की जा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ? एल्यूमिनियम यूज कर रहा हूँ। द प्रोसेस इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। इस एंटायर प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एल्यूमिनोथर्मी। सो Cr2O3 क्रोमियम का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया, 2Cr फॉर्म हो रहा है along with formation of एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, मैग्नीज का ऑक्साइड है, Mn3O4 है, एल्यूमिनियम के साथ ट्रीट किया, मैग्नीज फॉर्म हो रहा है along with formation of एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज refining of metal. So what is refining? It is the process of purifying the crude metal. Obtaining pure metal from the crude metal, the process is known as, this entire process is known as refining. So अगर हम refining में बात करें, so there are different techniques. सबसे पहले हमारे पास distillation। देखो
डिस्टिलेशन कहाँ पे यूज करेंगे? इट इज यूज्ड इन केस ऑफ मेटल्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी मेटल्स जिनके जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जिनका जो है लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उनके केस में जो है वो ये डिस्टिलेशन की टेक्निक जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, सो जो भी हमारे पास रिटॉर्ट है, अगर रिटॉर्ट में हम जो है जो भी मेटल है जिसको हमने जो भी हमारे पास मिक्सचर है, क्रूड मेटल है, जो भी क्रूड मेटल है उससे जो प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है, तो उसको जो है रिटॉर्ट में क्या करेंगे? हीट करेंगे मीन्स बॉईल करेंगे। ठीक है, प्योर मेटल का क्या होगा? फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो प्योर मेटल जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी और उसको जो है हम कंडेंस करके जो है प्योर मेटल जो वो ऑब्टेन कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटीज का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिफरेंट होगा, दे विल लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, ये तो थी फर्स्ट टेक्निक, सिंपल डिस्टिलेशन मेथड जो वो यूज किया जा रहा है इसमें, जिसमें मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो है, मेटल जो वो जल्दी बॉइल होगी और कंडेंस उसको जो है जो भी वेपर्स है उनको कंडेंस करके हम प्योर मेटल जो वो ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज लिक्वेशन टेक्निक। लिक्वेशन टेक्निक इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ इम्प्योर मेटल इन द स्लोपिंग हर्थ। ये क्या है? यहाँ पे स्लोपिंग हर्थ है। ठीक है, सो इम्प्योर मेटल, अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? देयर विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इम्प्योरिटीज एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। ठीक है, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? यहाँ पे लो है। ठीक है, सो मेटल विल मेल्ट इजिली। मेटल का लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से क्या होगा? मेटल जो वो जल्दी मेल्ट हो जाएगी एंड इट्स रेट ऑफ फ्लो विल बी फास्टर। मेटल का जो रेट ऑफ फ्लो है वो क्या होगा? फास्टर होगा एंड इट विल बी कलेक्टेड इजिली एट द बॉटम। यहाँ पे इजिली जो वो प्योर मेटल क्या की जा सकते हैं? कलेक्ट की जा सकते हैं। वाइल जो इम्प्योरिटीज होंगी उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा? ज्यादा होगा एंड द रेट ऑफ फ्लो विल बी स्लोअर, सो दे विल एक्यूमुलेट हियर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स। ठीक है, सो इम्प्योरिटीज जो है वो पीछे रह जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स एंड जो भी मेटल है वो इजिली यहाँ पे बॉटम में जो है वो इजिली ऑब्टेन हो सकती है। सो दिस टेक्निक इज नोन एज लिक्वेशन टेक्निक एंड मेन क्राइटेरिया इन केस ऑफ लिक्वेशन टेक्निक इज देयर इज डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज। ठीक है, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? लो होगा, इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज नोन एज लिक्वेशन टेक्निक। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड इज थर्ड जो मेथड है हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक refining. In case of electrolytic refining, we have this electrolytic tank. इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहा हूँ, तो जो एनोड है दैट इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोड है दिस इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर एंड जो कैथोड है दैट इज मेड अप ऑफ प्योर कॉपर। क्लियर है? एनोड इज मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर while cathode is made up of pure copper metal. Specifically here I am discussing in case of copper. So and these two electrodes are dipped in copper sulfate solution. यहाँ पे जो solution है this is copper sulfate solution and both these electrodes are connected with the source of a battery. ठीक है, यहाँ source of electricity. So we have studied electrolysis will take place in the presence of electric field, in the presence of electricity. So in the presence of electric field what will happen? At anode oxidation will take place and oxidation is what? Loss of electrons. तो यहाँ पे क्या होगा? Copper solid will lose how many electrons? It will form two copper to positive species along with liberation of two electrons. तो copper solid कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और साथ में क्या फॉर्म हो रहा है? copper to positive जो है वो फॉर्म हो रहा है। See, so this electrode will start डिसॉल्विंग। ये इलेक्ट्रोड जो वो क्या होगा? डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाएगा, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा एंड एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस। रिडक्शन इज व्हाट? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉपर टू पॉजिटिव यहाँ पे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कॉपर टू पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आए थे, ये क्या करेंगे? जब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, they will gain these 2 electrons and it will form copper solid species and copper solid will start depositing on this electrode. copper solid जो वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा? डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। So this is the apparatus assembly for the electrolytic refining. यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो जैसे और मेटल्स हैं तो उनके केस में दूसरी मेटल्स के भी हो सकते हैं इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग डिस्कस की है, किसके केस में? कॉपर के केस में। So these are the reactions which are responsible
फॉर द डिपोजिशन ऑफ अ कॉपर ऑन द कैथोड। कैथोड पे जो वो कॉपर जो है वो डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। द एंटायर प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। Redox reaction is taking place means reduction as well as oxidation, both the processes are taking place। ठीक है, तो एनोड पे कौन सी प्रोसेस हुई, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे कौन सी प्रोसेस हुई, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या थी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या फॉर्म कर रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव स्पीशीज, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वो लिबरेट हो रहे हैं। ठीक है, एट कैथोड रिडक्शन विल टेक प्लेस। रिडक्शन इज व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोल्यूशन में से इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन जो है वो क्या गेन कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, कॉपर सॉलिड स्पीशीज। वो कॉपर सॉलिड जो है वो कैथोड पे डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, so in this way electrolytic refining will work। Next method is zone refining, and in case of zone refining you can see in the diagram we have moving induction coil heaters, and these moving induction coil heaters will move and the impurities will be soluble in melt, they will be present in the melted form। so जैसे जैसे moving coil heaters जो है वो मूव करते जाएंगे, प्योर मेटल जो पीछे रहती जाएगी और जो इम्प्योरिटीज हैं वो किसके साथ जो वो मेल्ट के साथ जो वो आगे आगे जो है वो मूव करती जाएंगी। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है ये कहाँ पे यूज होती है, जो जोन रिफाइनिंग वाली जो टेक्निक है ये कहाँ पे यूज होती है, इफ वी हैव टू ऑब्टेन अल्ट्रा प्योर मेटल। अल्ट्रा प्योर मेटल मीन्स मेटल्स विद हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे मेटल्स जिनके केस में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिक्वायर्ड है, जैसे सेमीकंडक्टर्स के केस में हमें इस तरह की मेटल्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं। सो वहां पे जो जोन रिफाइनिंग का मेथड जो वो यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे इनर्ट एटमोस्फेयर क्रिएट किया जा सकता है। जैसे ही मूविंग इंडक्शन कॉइल मूव करेंगे, मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर जो वो मूव करेंगे, तो प्योर मेटल जो है दैट विल लीव बिहाइंड, और जो इम्प्योरिटीज हैं वो इन मूविंग इंडक्शन कॉइल हीटर के साथ साथ जो है वो क्या करते जाएगी, ये जो मेल्टेड फॉर्म में मेटल होगी आगे आगे जो है इसके साथ इम्प्योरिटीज जो वो मूव करते जाएंगे। सो इन दिस वे वी कैन ऑब्टेन द प्योर मेटल, दिस विल बी प्योर मेटल, और यहाँ पे इम्प्योरिटीज जो वो मूव करते जाएंगे। ठीक है, सो दिस टेक्निक इज नोन एज जोन रिफाइनिंग। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, जोन रिफाइनिंग। आफ्टर दिस वी विल डिस्कस वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, and in case of vapor phase refining the metal is converted into a volatile form. The metal is converted into volatile form there, and thereafter the volatile compound will again revert back into pure metal and the impurities will leave with the volatile component। so here you can see, here I am treating nickel with carbon monoxide and it will form nickel tetracarbonyl NiCO4। now this NiCO4 will again decompose to form pure nickel along with the liberation of carbon monoxide। so here metal is treated with carbon monoxide, you can see 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो 4 कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है वो एडिशन होगा और ये डिकम्पोज हो रहा है, 4CO जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी द बैलेंस्ड इक्वेशन। और ये जो है दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस एट 470 केल्विन। ये जो रिएक्शन है दिस कैन टेक प्लेस एट 470 केल्विन, एंड इन केस ऑफ निकल दिस प्रोसेस इज नोन एज मोन्स प्रोसेस। मोन्स process so this process is known as Mond's process, and this was fourth one, this was fifth। so निकल को ट्रीट किया किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, क्या बन गया, निकल टेट्राकार्बोनाइल बन गया। अब निकल टेट्राकार्बोनाइल जो वो किसमें चेंज हो जाएगा, प्योर निकल में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इम्प्योरिटीज जो है इसके साथ जो वो चली जाएंगे। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज Mond's प्रोसेस। सो टेम्परेचर कंडीशन 350 केल्विन पे रिएक्शन होगा, और ये जो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस एट 470 केल्विन। So students, next is von Oracle method, and this method is similar to the previous one, Mond's process,
और वेपर फेज रिफाइनिंग। सी यहाँ पे इम्प्योर मेटल है, इसको आयोडीन के वेपर्स के साथ जब वो हीट किया जा रहा है एंड यू कैन बैलेंस द इक्वेशन ZrI4 है 2I2 का एडिशन हो जाएगा 870 केल्विन पे इट इज फॉर्मिंग व्हाट ZrI4। ठीक है, ये वेपर स्टेट में होगा, वेपर स्टेट में प्रेजेंट होगा, इजिली क्या हो जाएगा डिकम्पोज हो जाएगा। ZrI4 जो है 2000 केल्विन के राउंड अबाउट टेम्परेचर है, टंगस्टन फिलामेंट की प्रेजेंस में ये चेंज हो जा रहा है जिरकोनियम में, प्योर मेटल जो ऑब्टेन हो जा रही है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ 2I2। ठीक है, सो अगर हमारे पास जैसे कोई और इम्प्योरिटीज हैं जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो उस तरह की इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए ये मेथड जो वो यूज होता है वॉन अराकल मेथड। ठीक है, इसी तरह से अगर टाइटेनियम है, इम्प्योर टाइटेनियम है, इसको भी ट्रीट किया किसके साथ, आयोडीन के साथ ट्रीट किया। यू कैन बैलेंस द इक्वेशन 2I2 गिव राइज टू TiI4। ठीक है, और ये भी क्या होगा वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, वेपर स्टेट में जो है ये प्रेजेंट होगा। देयर आफ्टर TiI4 विल डिकम्पोज एट 1700 केल्विन, 1700 केल्विन पे ये क्या होगा डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म टाइटेनियम प्लस 2I2। तो प्योर टाइटेनियम यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, प्योर मेटल यहाँ पे ऑब्टेन हो रही है और यहाँ पे प्योर जिरकोनियम जो है वो ऑब्टेन हो रहा है। So this method is known as von Oracle method and this method is specifically used for the refining of zirconium and titanium। zirconium और titanium के refining के लिए जो method use किया जा सकता है that is von Oracle method। ठीक है, so वेपर स्टेट जो volatile component में चेंज किया जाता है, वेपर स्टेट में जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन वेपर्स के साथ जो है इन मेटल्स को हीट किया जाता है। So this was von Oracle method।